इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Hello. Very good afternoon to each and everyone who has joined us today for Business Opportunity Over Chai webinar series. I, Archana Sharma, along with the entire team of Franchise India teams, welcomes you to 281th edition. This is a digital representation of the brand. We do not endorse any particular brand. If I talk about Franchise India is a platform, is a business consulting firm, and it's been almost more than 23 years. We are helping all international and national clients to expand their business with our 80 plus offices. And we truly claim that no one sells more business than us because we have helped thousands of investors in getting the business suggestions, feedback from our site so that they can take a conscious and informed decision of taking a right franchise for them and for their families. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, we'll be talking about the opportunity which we have got for you, along with different business aspects. The brand which Franchise India team is representing today is Juice Factory. It's a well-established and growing chain of fresh juice center with 14 outlets successfully running pan India. And we invite and welcome Ms. Mansi Mittal. She's a BD head for Juice Factory. She'll be joined by Gitesh and Shubham soon. We'll be taking all your queries. So thank you so much, Mansi, for joining in today. Over to you to explain the business model for each one of us. Thank you so much, ma'am. Good afternoon to everyone. I hope all are doing well. I'm Mansi Mishra. I'll be taking the presentation on the behalf of my team, Juice Factory. So I'll be sharing my screen with you. Please let me know if it's visible. Hello, ma'am. Mansi, we can't see your PPT screen. Okay. Is it visible now? Mansi, we can see it yeah. If we can go for a full screen. Sure, ma'am. Okay. So before starting my presentation, I just want to brief you about the Juice Factory. This Juice Factory was established 2015 in Bhilai, Chhattisgarh by two people. So that is Gitesh Chandrakar and Shubham Jain.
Our main mantra is to stay fit, stay healthy, and provide the easy access to healthier life to our customers, right? So I'll just proceed with my presentation. Like I said, it was started in Bhilai co-founded by Gitesh sir and Shubham Jain. Our main focus is to provide the healthier life through the juices to the customers. These are the pictures of our products. In our menu, we have very dynamic menu, which changes according to the customer's demand, but most of the menu contains the beverages. And in the beverage section, we focus on to provide the healthier juices. The pictures first you will see is health factor. These are the juices, vegetable juices, depending upon the different type of diseases which help in curing those diseases. Next, we have the fruit juices. We also have the mocktail sections for the younger generation to have a light drinks for them. In the food section, we have some few proteins, but we have made sure that if we are having any in our menu, we are focused more on providing the healthier life. So we have kept sweet corns, sprout chats, and fruit salad so that it will provide more fiber, more nutrients to the customers. We have also the category of shakes, where we provide all the shakes. I guarantee you, we focus more on the quality of the products. So the products we serve are mostly totally the recipes and everything are totally natural. We have few food section. Food section, we have sandwiches. We also have corn palak sandwiches, masalas and everything. So like we all know, if we go through the food service market data, that in 2016, it was first, if we see the data, total was 3,091 billion market. But in 2017, it was increased to around 49,081 billion market, in which there are two types of markets. First is organized and unorganized. In our unorganized market, we can see that the small, what should we call, a thela, fruit stalls, like that. These are those unorganized market which just run without any document, without any particular recipes, like that. But there are other organized market too. We are more focused on the organized market, as in 2016 organized market rate was 924 billion, and which is raised to in 2021, which is raised to around 200 billion. So because of that, we are most focused on that side. You can see that in this current PPT, you can see that it was started in 2015. We have 11 running stores, and other 3 are upcoming store in this month. We are mostly operating in Maharashtra, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh. Our model is more focused on FOFO model, where is franchisee owner franchisee operate model. This is the best model because in this model, it is a franchisee's ownership, investment is done by franchisee, operation is done by the franchisee, the revenue is for the franchisee, but only the brand guidelines like recipes, products, everything will be done according to the brand. Other than everything should be owned by the franchisee. Next. Like I told you, our main concept was healthy, providing healthy nutrients. Sorry. Okay.
I have already told you about this. The only thing I forgot to mention about our formats, our best formats are kiosk, freestanding kiosk, cafe models, which I'll be sharing the pictures now. So this is a picture of our different outlets of different formats. First one is our standing kiosk. Dining is also available here. Next is inline shop. And the third one is the cafe model. Dine-in, parcel, delivery, all the facilities are available here. The complete details are as follows. Okay. These are our three models. To explain this model to you, we have divided it into three segments. That is, first is area. For any model, we need at least 200 square feet for the kitchen. And other area is for our dining or the parking facility. Like for the kiosk, we can see here. For first, I'll go for the cafe model. That is, we need approx 800 sitting area, 800 square feet, in which 200 square feet will be taken by the kitchen, right? The second part of this is our franchisee fees and marketing details. Our franchisee fees is 3 lakh plus GST. We have marketing fees also. We charge, this is a marketing fees. We charge for 300 per month. Other details are mentioned according to the cafe models. The third portion is the equipment part, where all the furniture, machine, equipments, POS, software which we are using, IT tools, all the details are below. Okay, so this is our kiosk model. We have 5 years of plan in this, completely laid out. Hello. We can hear you, Mansi. Continue. Ma'am, I think the PPT is fast. No, we can see cloud kitchen model. Okay, okay. So from here, I want Shubham sir to continue further so that he can explain you in complete details. Ma'am, can you please connect with the sir? Hello. Hello. Hello, voice clear? Yes, sir, your voice is completely clear. Okay. Sir, can you please take further from here? मुझे इसके पहले की जो 2-3 PPTs हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल स्टार्ट हो रहा है, मैं वहां से कंटिन्यू करता हूँ. Sure, sir, sure. Welcome, Gitesh ji. Welcome, Shubham ji. Thank you. Hi. So, Mansi, can we continue? Yes, ma'am. Please continue. Go with upward the financial models जो स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों अलग अलग जो मॉडल्स हैं हमारे, वहां से स्टार्ट करते हैं. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स. Sure, sir. पीपीटी को ऊपर करेंगे. ओके, आई विल कंटिन्यू. कुछ पीपीटीज में प्रॉब्लम है. 3 अलग अलग मॉडल्स हैं जूस फैक्ट्री के. देयर इज वन इज तीनों में कॉमन चीजें ये हैं कि 200 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स किचन एरिया होता है, जिसको हम कियोस्क भी बोल सकते हैं या किचन सेटअप एरिया बोल सकते हैं, विद 50 स्क्वायर फीट ऑफ स्टोर रूम आल्सो इट इज इंक्लूडेड. उसमें 50 स्क्वायर फीट का स्टोर रूम भी इंक्लूड होता है. रेस्ट ऑफ एरिया जो है वो किचन के प्रोसेस के लिए डिजाइन किया जाता है. एंड द रेस्ट ऑफ एरिया इज फॉर द कस्टमर सिटिंग अरेंजमेंट,
the standing kiosk and something is like that. Okay, customers area हम बोल सकते हैं उसको. Then the franchisee fees is 3 lakh plus GST and आपके हिसाब से अगर आप कोई लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं जो सबसे ज्यादा मेन होता है एक फ्रेंचाइजी के लिए, तो उसमें मैं बेसिक कुछ चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसी लोकेशंस आप फाइंड आउट करते हैं उसके हिसाब से सेटअप कॉस्ट जो है वो अप एंड डाउन होते हैं. ओके, एंड रेस्ट ऑफ जो चीजें हैं लाइक इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, मार्केटिंग फीस and the management systems, IT tools, POS, these are the fixed investment cost for the franchisee. अगर आप टोटल करते हैं इन चीजों को, आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आएगा वो 9 to 15 lakhs के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंक्लूडिंग द फ्रेंचाइजी फीस. ओके, 9 to 15 डिफरेंस होने का बहुत बड़ा फिगर इसलिए है बिकॉज फॉर द सेटअप कॉस्ट कई जगह पे हमको लोकेशंस इतनी अच्छी मिल जाती हैं, बहुत इजी वे में मिल जाती हैं कि जहां पे हमको सेटअप कॉस्ट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं आती है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे वर्कआउट होता है. दैट्स व्हाई सेटअप कॉस्ट डिफरेंट करता है. बट फॉर द इक्विपमेंट कॉस्ट, द फर्नीचर कॉस्ट एंड द IT कॉस्ट एंड POS, दीज आर द फिक्स्ड एसेट कॉस्ट. इनकी जो कॉस्टिंग है वो फिक्स्ड है, ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है. इनका फ्लक्चुएशंस जो है वो 2 to 3% ही होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से. ओके, तो ये बेसिक चीजें थी हमारे तीनों मॉडल में, बहुत कॉमन है. अब हम तीनों मॉडल्स के बीच में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो जितना कम स्पेस होगा वहां पे गैदरिंग जो है कस्टमर्स की सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब डाइनिंग जो प्रोसेस है वो बहुत कम होगी एंड जो टेक अवे प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो सकती है. माने हम डाइनिंग एंड होम डिलीवरी दोनों को अगर हम कंबाइन करें, देन द कियोस्क मॉडल हैव गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर ओनली द होम डिलीवरी. सिर्फ हम होम डिलीवरी की अपॉर्चुनिटी वहां पे गेन कर पाते हैं. बट हम अगर सेटअप डाइनिंग कियोस्क की बात करें, लॉन्च जिसमें हम बोल सकते हैं, लॉन्च की अगर हम बात करें तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है. जूस फैक्ट्री का मोटिव जो है वो हमारा फैमिली एंड यंगस्टर्स को ज्यादा गैदरिंग करने का है. हमारी जो बेसिक टाई अप्स होते हैं, हम हॉस्पिटल्स, जिम, इनके साथ डायरेक्ट टाई अप करते हैं कि बेसिक इनकम जो है वो आपकी 100% रेवेन्यू में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने का है. हमारा जो एम है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स सर्व करते हैं. इस कोविड सेक्शन की भी हम बात करें, जो पिछले 2020 में हमने कोविड को फेस किया है, इस कोविड के टाइम पे भी हमने अपने प्रोडक्ट्स को काफी इम्प्रूव किया है. लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. हमने होम डिलीवरीज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई थी, होम डिलीवरी से हमने क्लाउड किचन फॉर्मेट में अपने कियोस्क को कन्वर्ट किया और होम डिलीवरी सेक्शंस को बहुत इम्प्रूव किया है इस टाइम पर. अभी फिर से जो एक क्रिटिकल पोजीशंस आ रही है कोविड की, उसमें भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है मुझे कस्टमर्स की तरफ से कि दे गॉट, उनको जूसेस चाहिए होते हैं या कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहिए होता है जिससे उनकी इम्यून पावर बढ़े, उनका बूस्टिंग. जो जिम वाले होते हैं जो कंटिन्यूअसली जिम करते हैं, उनको कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स खाने को मिलता है. तो जूस फैक्ट्री इस तरीके से काम करता है. बाकी फाइनेंशियल मॉडल इसमें दिया गया है, 5 ईयर प्लान दिया गया है. कब हाई है सेल्स आपकी, कब लो है, किस किस मंथ में किस तरीके से होगा. ओके, बेसिकली नो डाउट सबको पता है कि गर्मी और समर सेशन अभी जो चालू हो रहा है, ये सबसे ज्यादा बूम मार्केट को बूम करने के लिए काम आता है. इस समय लोगों को ड्रिंक्स जो हैं वो कूल एंड हेल्दी चाहिए होता है, एनर्जी के लिए चाहिए होता है. तो इस समय जो सेल्स है वो काफी अप लेवल पे इंक्रीज होती है. ओके अर्चना जी, आगे कंटिन्यू करें, थोड़ा सा आप आगे कर दीजिए पीपीटी को. मैनेजमेंट टू फोकस ऑन. मानसी आप कंटिन्यू करेंगे इसको? Sure, sir. Management to focus on. So we have tried our best to provide a franchisee a complete support. Not just the franchisee, we also look forward to our customers to provide a
complete support to the customers as well. Their reviews, their queries, we personally handle the reviews and the queries of our customers. Okay, key support. So our main, if you are looking forward to taking a franchisee, what we want from a franchisee is that a franchisor should not just provide a fund to it, but also he should be deeply involved with the process as well. A franchisor should take interest, keen interest in the processes from very beginning to the end of the sessions, because if you are not involved with the processes which we are having, we will definitely provide the support. We have a support team to help you with the menus, with the billing softwares, with handling the customers and marketing strategies. If you are not involved in those processes, it will be very tough for us to communicate with the franchisee, and it will be very difficult to carry on the process in a smooth way. So here, what are our expectations from the franchisee are listed. First, a franchisee should select the site. If he's confused with particular site, we will guide them which is the best location for them. It is very, from our side, he's free to select the location. Once he selected the location, our franchisee selected the location, he will give it to us. We will analyze whether the location is fulfilling all the details with our plan, going with our plan or not. Will the location will have provide us the benefits or not, and then we'll carry forward it. If the franchisee's location is not fixed or he is in dilemma, so we will provide him the details, the minute details from which he can go through and select the location accordingly. We also provide the complete training, staff training. Our base station is Bhilai, Chhattisgarh. We help your staff, the staff will be appointed by your side, or we will help you to appoint them. All the training will be conducted in Bhilai, Chhattisgarh, or we can try to help you. We can provide the training at your place as well, according to the situations. Next is our operations manual. We have a complete guide how the we have complete guide of the recipes, the kitchen preparation. We have all the minute details to take care of while preparing any product in the kitchens. What are the things to do? What are the don'ts? So we have complete manual for that, but we expect it to keep it confidential, or it should be between a franchisee and the franchises. Next is the training and field support. We also have our franchisee team who will initially appointed to you, and he will give you the on-site support. He will help you during the initial stages, from build up of your model, from build up of your kiosk and everything. He will help you with your location or site manager also. He will look after that. Other than that, on-site support, we have on-call support as well, who will look after the software side. Next is purchasing and supplier assistant. Juice Factory work in 4 models. First is franchisee, right? Second is our warehouse, from which we supply our products to our franchisees. Third is the support, and fourth is the research team. I'll briefly explain you all the models. Franchisee model will help you in guiding the location. Once your franchisee is done, you will move to the support side. Support will guide you the complete process, from initializing from your home delivery section from Zomato, Swiggy to your POS,
installing the software, installing the menu, which is the right menu for you, for staff training purposes, from logging in Zomato, Swiggy, or any other Uber Eats, any other third-party integration. Everything will be looked by the support side. Third is our warehouse, which will provide you, supply you the appropriate products, which will provide you all the products. You don't have to worry about the products from where you get the purchase of products and everything. You can have it in one house only. Everything is available between us. But if you want, we can help you with the local supplies as well. We have tied up with lots of brands which is going with our recipes. So if those are available in your places, we can help you that you can directly communicate with them, or you can directly take the supplies from them, right? Next is our research team. The research team monthly, or you can say yearly, goes through our products, our menus, which are going good, which are not going good. So the research team check with the what is on demand, currently on demand, and it works accordingly. The last is marketing guidance. We also provide you the marketing facilities with us. You don't have to look forward for any third party for your marketing. We have complete marketing plan ready for the franchisees with minimum budget as possible from the market. And we guarantee you, we know what marketing our brand needs to do, what we needs to sell. We do the marketing accordingly. We provide you all the details. If we are launching any product, we will provide you a particular kit regarding that with all the list of products, the posters you required, the marketing you need to do in Instagram, Facebook, everywhere, Google My Business. Everything will be done from our side. So this is our vision of 2030. We are planning to have 200 units. Currently we have 14, but sure we'll be going for the 200 units by the time we reach 2030. In Chhattisgarh, we have mostly 8 to 10 outlets in Chhattisgarh only, because it's a local brand. So we have started from here, but we have moved to Maharashtra. We have 2 outlets there. Now we have in Madhya Pradesh as well. We are looking forward from all the different states. This is our plan before the 2030. We also have the plan for master franchisee as well. Shubham sir, can you please explain this model of the master franchisee? Okay. The master franchisees right now हमने just master franchisee को भी execute नहीं किया है, तो इस पे जो भी commands होंगी वो basically एक हम support team जो है जो काम करती है, वैसा ही एक सेटअप हम सेम टू सेम एज इट इज द मास्टर एरियाज पे ही प्लान आउट करेंगे. ओके, जहां पे लोकल वेंडर का सपोर्ट, इसमें बहुत कॉमन सी चीजें हैं लाइक एंड द 10-year प्लान, इन्वेस्टमेंट the investment range of the master franchise is between 35 lakhs लिखा हुआ है इसमें. the single point of the कॉन्टेक्ट, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारा ऑलरेडी अभी बताया गया है सपोर्ट टीम से है. सपोर्ट टीम आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देगा जहां से आपको पूरी चीजें इजीली फ्रेंचाइजर एंड सब फ्रेंचाइजी के बीच में कनेक्टिविटीज बनी रहे. ओके, नाउ द लोकल वेंडर्स, हम वी जूस फैक्ट्री हैव ऑलरेडी टाई अप विद मोर देन 80% ऑफ द ब्रांड्स. जो ब्रांड्स हम यूज करते हैं उनके साथ 80% के साथ हमारे बेसिकली टाई अप्स हो चुके हैं, जो आपको लोकल एरिया पे जो प्रोडक्ट सप्लाई है या जो भी वेंडर सपोर्ट्स हैं, दे विल बी प्रोवाइडिंग इजीली. एंड द मोस्ट एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ब्रांड इज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग्स के लिए हमारा सीधा फंडा है कि हम एवरी 2 और 3 मंथ्स में हम एक सरप्राइज विजिट रखते हैं. एक मास्टर शेफ जो है वो सरप्राइज विजिट रखता है. आप 3 मंथ्स की आपकी पूरी ऑडिटिंग होती है. ऑडिट आफ्टर द ऑडिटिंग वी विल गिव
द डॉक्यूमेंटेशंस की आपके यहाँ पे क्या क्या निगेटिव्स आ रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स आ रहे हैं, किन चीजों का आप ध्यान रख रहे हैं, कस्टमर फीडबैक्स क्या है, हर एक पॉइंट पे हम सर्वे करते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं। वो पूरी ऑडिटिंग लिस्ट मास्टर शेफ जाता है, वहां पे पूरी ट्रेनिंग देता है मोर देन 2 to 3 days एंड आफ्टर दिस फिर जो ब्रांड है जो गलतियां वो कर रहे थे उन गलतियों को सुधारते हैं और फिर मार्केट में वापस ब्रांड फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हम हर एवरी अभी जितनी लोकल अभी जो करंटली पोजीशन पे हम कोविड के सेक्शंस में देखें तो 2 महीने में पर डे ट्रेनिंग्स हुई है, माने हर आफ्टर 2 मंथ्स हर 2 महीने में ट्रेनिंग्स हुई हैं उनकी। और फॉर द मास्टर फ्रेंचाइजी भी हमारा यही फंडा रहेगा, हम एक भी फ्रेंचाइजी को मिस नहीं करते हैं फॉर द ट्रेनिंग। एवरी मंथ एवरी 2 to 3 months ट्रेनिंग कंपलसरी है और इट्स अ सरप्राइज विजिट और वो सरप्राइज विजिट से काम होता है। देन द रेवेन्यू कलेक्शन मास्टर फ्रेंचाइजी में जो होल्ड करेगा मास्टर फ्रेंचाइजी को वही पूरा रेवेन्यू रखेगा एंड द कंपनी विल गाइड देम फॉर दैट कि क्या रेवेन्यू कैसे उनको आउटपुट निकालना है, इनपुट कैसे देना है उस चीज का, वो सभी चीजें प्लान आउट में डली हुई हैं। Are we done, Kiteshi, or we have any other slides also to be put? No, ma'am, we are done. Great. I'd like to thank both of you, Kiteshi, Shubhamji, and Pansiji, for putting this presentation. And one thing I like to also say, I think you've been very humble in presenting the entire format and the business. And everybody from Chhattisgarh and nearby areas, I'm sure somebody who's used or been to the outlet would really vouch this company is a rage, the brand is a rage. And I wanted to take maybe a moment for all of you, while the presentation was going on, I could lay my hands on a video, which I think would be worth a while. And this was one of the launches, which was done in the month of February last year. And this video is, and if you allow me, Jitesh ji, ये video आपका last month का है, ये आपने जो launch किया है एक outlet February में, उसका है. So I wanted to take a minute. It's a long video. I'd like to maybe cover maybe, a minute out of the video. Sure, ma'am. And this is the video, and I'm sure अगर आप 1 minute इसको देखेंगे, you will understand what the brand and the opportunity is all about. जय जोहार। मैं हूँ राज, कैमरे के पीछे सुशांत, और आज हम लोग आए हैं जूस फैक्ट्री चौपाटी, जो कि खुला है लेटेस्ट एकदम रिसेंटली। 1 महीना हो गया, हालांकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन फाइनली आप लोग बहुत मैसेज किए यार, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कॉमेंट्स में भर दियो यहाँ का वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग आज फाइनली आ चुके हैं, चल के देखते हैं क्या क्या अपने को खास मिलता है यहाँ पे। वैसे मैं आ चुका यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका हूँ, खा भी चुका हूँ कुछ। तो आज चलते हैं अंदर, पूरा माहौल दिखाऊंगा आप लोग को और फूड भी ट्राई करके, ठीक है। चलो, एग्जैक्ट लोकेशन की लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और इन शॉर्ट में एकदम बढ़िया सा एक आपको एड्रेस बता देता हूँ। ढिल्लन होटल के, ढिल्लन ग्रैंड ढिल्लन होटल के जस्ट पीछे या जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा हमारा जूस फैक्ट्री चौपाटी। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चौपाटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम जल्दी से। ओ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट urban cup. So this was it. I thought I'll take a moment, and I must also say, when you launch this outlet, Franchise India, we also received a lot of inquiries. I myself not been to your outlet, but I got a very positive response from many investors
who have reached out to us, जो शायद आपके आउटलेट पे गए, कंज्यूम किया, and the feedback which I got from almost everybody who called Franchise India for your franchisee was कि ये आउटलेट हमेशा भरा रहता है. There's a big queue always outside for getting in. So I would congratulate you, Giteshi, and Shubham ji and Mansi for what you've put in. And मेरे को लगता है जो आपने vision लिया है 200 outlets का, you're not far from being there. And friends, जितने भी आप लोग local हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं, I'm sure you can all have opportunity of even visiting the outlet. I will request all of you, जो भी आपके questions हैं, you can start putting all the questions in the Q&A box, and we will start taking them one on one. I do see some of the questions coming in. तो शुरुआत करते हैं जितेश जी. अगर मैं सबसे पहले हम, if I have to retreat and summarize the business model, I think we do have people asking. We have Mr. Siddharth Upadhyay. He's looking for a presentation and थोड़ा बहुत detailed discussion भी चाह रहे हैं. So मैं शुरुआत करती हूँ business model से. And friends, just to maybe reiterate and sum up, there are 3 business formats which they are looking at. एक kiosk format है जो 300 square feet का area लेता है. तकरीबन investment is about 12 lakhs. Second format is cloud kitchen जिसमें 600 square feet का area है and the investment is about 15 lakhs. And then we have a big cafe or a shop format which requires 800 square feet of space, and the estimated investment is about 19 odd lakhs. The overall royalties in the business model is about 6% on your total sales. And इसमें तेशी अगर हम बात करें, and they were different, I think आपने बहुत in depth समझाया है, but it will take time for a lot of viewers to maybe get into detail breakup of the investment. So ये मोटा मोटा जो investment है friends, ये आपका franchise fees में है, which is anything between 2 to about 3 odd lakhs जो आपका franchise fees है. And बाकी जो investment है आपका equipment हो गया, capex हो गया, basic supply है initial जो आपको चाहिए होगी, ये सारा मिला के आपका investment बनता है. देखिए, I'll take maybe a moment. I think broadly investment सब समझ रहे हैं. दूसरे जो चीज में I would maybe want to pick your mind, and if you can explain to the prospective investors is little bit on the investment. अगर हम broader बात करें, क्या हमारे खर्चे रहते हैं एक आउटलेट को रन करने के लिए, और आपने बहुत ही एक modest average sales लिए हैं which starts from about 10,000 per day. आपने एक average sales लिया है. अगर हम तीनों फॉर्मेट में एक तो हम समझ सकें, अगर हम बॉल पार्क फिगर ले सकें कि क्या एक एवरेज सेल आता है, बिकॉज यू रनिंग ऑल दीज आउटलेट्स, एक आपने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, क्या एक रेवेन्यू या एक ऑप्टिमम लेवल हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड दूसरा जो हमारा टिपिकल एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो हमारे किन किन आई वुड से हेड्स के नीचे होते हैं, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर पाएं. वेल वी सॉ दैट इन द प्रेजेंटेशन, बट अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं वुड बी वेरी हेल्पफुल. ओके, जस्ट मैं आपको टोटल इन्वेस्टमेंट से लेके एक आउटपुट तक लेके चलता हूँ. हम फ्रेंचाइजी फीस को थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि ये ब्रांड फीस है, उसको हम बहुत साइड रख देते हैं. हम टोटल इन्वेस्टमेंट फिगर को 3 अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन इज द फ्रेंचाइजी फीस जो कि 3 लाख प्लस जीएसटी है. देन द सेकंड इज द फिक्स एसेट कॉस्ट जो आपको लगना ही है, जो फिक्स है, लाइक आईटी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए. इक्विपमेंट्स लाइक जो भी किचन इक्विपमेंट्स होते हैं, कढ़ाई, चम्मच एंड ऑल, छोटे छोटे बर्तन जिसको हम बोल सकते हैं, वो इक्विपमेंट्स कहलाते हैं. द मशीनरी कॉस्ट, फ्रिज हो गया, ब्लेंडर्स हो गए, डीप फ्रीजर्स हैं, माइक्रोवेव है, दीज आर द मशीनरी. एंड द फर्नीचर्स, टेबल, चेयर्स. ओके, इन सभी कॉस्टिंग को अगर हम प्लस करते हैं तो अप्रॉक्स 3 to 4 लाख जो है वो आपका फिक्स एसेट्स कॉस्ट हो गया. मतलब ये आप कियोस्क लेते हैं या आप कैफे लॉन्च करते हैं या लॉन्च करते हैं या किसी भी मॉडल में अगर आप जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको आएगा ही. देन आफ्टर दिस, देन द सेकंड पॉइंट हम आते हैं द लॉन्चिंग मार्केटिंग कॉस्ट. ओके, लॉन्चिंग मार्केटिंग कॉस्ट भी आपके लिए एक फिक्स्ड है. आपके रीजन के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपकी सिटी कितनी बड़ी है, वहां पे कितनी होर्डिंग्स जानी चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग पैनल हमको लॉन्च करना है, उसके लिए हम एक टेंटेटिव फिगर लेके चलते हैं अप्रॉक्स 1.5 लाख के अप्रॉक्स. ओके, लगभग हम 1.5 लाख के अप्रॉक्स की मार्केटिंग कॉस्ट लेके चलते, 1.5 से 2 लाख रुपए की. देन द फिगर इज अप्रॉक्स हो गया आपका 4 + 2, देन अप्रॉक्स 6 एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट द 6 to 7 लाख और 8 लाख जो है वो आपकी लोकेशंस, माने आपका जो सेटअप है उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है. अब सेटअप को भी अगर हम छोटा सा मैं और ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, लाइक जैसे कि हम किसी शेल को रेंट पे लेते हैं, रेंटेड पोर्शन को लेते हैं शेल को,
तो कई बार शेल दो तरीके की पोजीशंस पे आता है, या तो वहां पे कोई ना कोई पहले से शॉप स्टेबलाइज होती है जिसको हम तोड़ते हैं, अपने हिसाब से रिनोवेट करने के लिए भी हमको कुछ लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, देन लिटिल बिट अप होता है। कई बार ये होता है हमको न्यूली मैन्युफैक्चर्ड नया नया शेल मिल जाता है, तो उस पे जब हम काम करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे बहुत जल्दी रनिंग प्रोसेस में, जैसे जहां पे हमको 20 दिन में आउटलेट ओपन होना होता है, वहां पे हम 10 दिन में आउटलेट ओपन कर लेते हैं। ये प्रोसेस पे टाइम आता है। अब हम जो हमारे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आउटलेट रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। in the 14 outlet, more than 10 outlets are being जो हमने बनाए हैं वो सभी के सभी ओपन स्पेस पे हैं। लाइक जैसे किसी का घर हो गया, किसी घर के पार्किंग एरिया होती है, गार्डन होता है, कोई भी चाहता है गार्डन में लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं करते, ज्यादा घूमने नहीं जा रहा है, कोई ज्यादा बैठ नहीं रहा है। अगर हम किसी घर रेंट ओनर को बोलते हैं, घर पे रहने वाले पर्सन को बोलते हैं कि सर हमको आप सिर्फ अपना घर के सामने का फ्रंट एरिया, पोर्च एरिया का लगभग 400 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट दे दें, ठीक है, वी विल पेइंग 30,000 एंड 35,000, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है और वो बोलता है ठीक है भाई 300 मुझे स्क्वायर फीट ही देना है और मुझे इतना इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव, मतलब हम ओपन एरिया या ओपन कॉन्सेप्ट की बात करें, क्योंकि हमारा जो जूस फैक्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन इंडिया मोर देन 75% जूसेस जो है वो ठेले पे या छोटी छोटी टपरियों पे या छोटे छोटे सेल्स में, माने अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पर ही सर्व किया जाता है। आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाएं, उनके आसपास आप देखें तो आपको छोटे छोटे ठेले मिल जाएंगे, थोड़ी टपरी टाइप की कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ओके, तो आपको उस जगह से जूस परचेस करना होता है या शेक परचेस करना होता है, या कोई भी हेल्दी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वी आर, कि हमने ठेले से उठकर एक छोटी सी जगह से उठाकर हमने उसको सोफिस्टिकेटेडनेस पे लाके खड़ा कर दिया। हम किसी तरीके के अपने कैफेज में एसी का यूज नहीं करते, किसी तरीके का हम वेटर सर्विस नहीं है कि हमने बहुत अच्छा एम्बियंस दे दिया। हम जस्ट प्रिटेंड लाइक दैट कि आप एक जहां पे आप खड़े होके कर रहे थे, वहीं पे हमने स्टैंडिंग टेबल्स आपको प्रोवाइड कर दी। जहां पे आप नॉर्मल पेड़ के नीचे खड़े होके आप जहां जूस पी रहे थे, वहां पे हमने एक छोटा सा गार्डन का लुक दे दिया, थोड़ा सा पॉट्स लगा दिए, थोड़े से अच्छे प्लांटेशन कर दिया। तो एक उनको जो एम्बियंसिव है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और एक क्लीननेस एंड हाइजीन के साथ हम उनको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को सर्व करते हैं जो 365 डेज मिलते हैं। तो हमारा मोटिव एंड कॉन्सेप्ट वो है। उसके हिसाब से आप लोकेशन देखेंगे तो नो डाउट जो आपके कस्टमर्स हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि हम आपको एसी एंड बाकी सब चीजें प्रोवाइड करें। मेरा मोटिव वही है, लाइक जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है मुझे कि लोगों को वो कैफे टाइप का फील आने लगे। दे हैव टू बी डिमांडिंग कि हमको बर्गर भी खाना है, दे हैव टू बी डिमांडिंग कि हमको चिप्स चाहिए, हमको कुरकुरे चाहिए एंड ऑल, कुछ भेल वगैरह मिल जाए, क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं। हमारा मेन्यू बहुत सिंपल सा है। मेरा पूरा मोटिव है इन द हेल्दी फूड्स। लाइक जैसे अभी हम एक सैंडविचेस है, सभी लोग जानते हैं कौन चीज, ऑब्वियस सी बात है चीज मतलब फैट तो होने ही होने वाला है इसमें। जूस फैक्ट्री में आप कभी भी कौन चीज खाएं, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं उसमें जीरो चीज है। नो डाउट नाम इस कौन, उसका नाम ही है कौन चीज, बट उसमें चीज नहीं होती, और मेरी बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट है। मतलब हम ऐसा उसमें क्या डालते हैं ये मैं रिवील तो नहीं करूंगा, नो डाउट वो एक चीज का फ्लेवर आपको प्रोवाइड करता है। तो हमारा मोटिव है लोगों को मोर से मोर हेल्दी बनाने का। हम ब्राउन ब्रेड दे रहे हैं, ब्राउन ब्रेड से कॉर्न ले रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा फाइबर्स होंगे, एंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ द चीज, एंड चीज का सब्स्टिट्यूट है जो उनको क्रीमी बेस और क्रीमी फ्लेवर लाके देता है। इस तरीके से हमारा मोटिव है। ओके, तो लोकेशंस जो है वो बहुत मैटर करती हैं किसी भी चीज को लेके। तो बाकी का जो अमाउंट है, जो बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है 7 to 8 lakhs का, इज द सेटअप कॉस्ट। ओके, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से हम बोलेंगे आपको सिर्फ 6 लाख रुपए में मार्केटिंग भी हो गया, आपका कियोस्क भी रेडी हो गया और सब चीजें रेडी हो गई हैं। ओनली द 6 to 7 lakhs का इन्वेस्टमेंट में। रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो फ्लक्चुएट होता है एज पर द लोकेशन। हो सकता है आपका आउटलेट 3 लाख में ही ओपन हो जाए तो 9 लाख में भी ओपन हो जाए, हो सकता है आपका आउटलेट 12 से 15 लाख में ओपन हो जाए। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशंस की, कैसी लोकेशंस आप ले रहे हैं। जितना ओपन लोकेशन होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, 5 साल के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, ये सब चीजें होती हैं।
आप ओपन कॉन्सेप्ट हमारे कुछ फ्रेंचाइजीज के मैं नाम लेना चाहूंगा, प्लीज यू हैव टू बी नोट डाउन। आप उनके गूगल पे जाइए, पिक्चर्स देखिए, यू हैव टू बी ग्लैड कि वो कितना प्यारे आउटलेट्स बने हुए हैं। इट्स अ ओपन कॉन्सेप्ट, बहुत पोर्टेबल फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं। पोर्टेबल फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब फ्यूचर में आपको अगर शिफ्ट करना है, यू हैव टू बी शिफ्टेड विद इजीली मोड, बहुत इजी मोड में आप शिफ्ट कर सकते हैं उनको। द आउटलेट्स इज अंबिकापुर, बिलासपुर 1 and 2 बोथ। बिलासपुर में 2 जूस फैक्ट्रीज हैं, एंड बालाघाट, गोंदिया, ये कुछ सिटीज हैं। इन सिटीज के आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, कियोस्क काफी बहुत इजी मोड में बने हुए हैं ये। ओके, ये तो था फाइनेंशियल मॉडल, 3 अलग अलग डिविजन्स जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपका अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट होगा। देन द प्रॉफिट, फाइनली हर इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है प्रॉफिट। आप मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं, जूस फैक्ट्री के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, यू गॉट द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट ही चाहिए है। तो मैं आपको जस्ट इजी वे में बताऊंगा कि एक बेसिक हम लेके चलते हैं 100 ऑर्डर्स इन अ डे। 100 ऑर्डर बहुत मामूली होते हैं, एंड पर ऑर्डर हम लेके चलते हैं 50 रुपीज, बहुत मिनिमम जूस की वैल्यू में लेके चल रहा हूँ, 50 रुपए। ओके, हमारे यहाँ पे 20 रुपए से जूस स्टार्ट है अप टू द 99 रुपीज। हम बिल्कुल मोटिव नहीं है मेरा कि मैं 3 फिगर में जाके 100 एंड 110 एंड 120 लोगों को दिखाऊं और उनको ये फील कराऊं कि बहुत ज्यादा हैवी आ रही है अमाउंट, ये 3 फिगर में क्यों जा रहा है। इसलिए मेरा मोटिव है, मैं 2 फिगर पे ही उनको रोक देता हूं, द 99। ओके, द क्वांटिटी इज फिक्स, द 300 ml, हम 300 ml से ना ज्यादा सर्व करते हैं ना कम सर्व करते हैं। ओके, all our juices and all our shakes, all our the drinks, the quantity is 300 ml। 50 रुपीज के अगर हम 20 रुपए की तो बात नहीं करेंगे, 20 रुपए बहुत नॉमिनल कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट है। एक एवरेज रेंज के जो प्रोडक्ट है वो हमारे 50, 60 एंड 70 रुपीज पे, अगर हम 100 ऑर्डर भी लेके चलते हैं देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 500 to 7000 रुपीज की सेल, 5000 to 7000 रुपीज की सेल्स आपकी दिन की होती है इन अ डे। ओके, इनटू आप 30 कर लीजिए, आपको फिगर आउट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे द मार्जिन कॉस्ट। तो जो हमारा फूड कॉस्ट है वो 40 to 50% पे ही फूड कॉस्ट जाता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज योर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट्स आपके हर महीने जो आपका कंजम्पशंस होंगे वो लाइक द वन इज सैलरी, द सेकंड वन इज द रेंट। जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, आपको जो फिक्स एक्सपेंस होंगे वो रेंट हो गया, द सैलरी है, रेंट, सैलरी एंड little bit of 5 to 10,000 rupees of यूटिलिटी हो जाता है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, फूड कॉस्ट आपने बताई है 40% 40 to 50% फूड कॉस्ट हो गया। अगर हमने 100 रुपए का भी कोई जूस लिया तो उसमें 40 से 50 रुपए जो है वो निकल गए आपके फूड कॉस्ट पे। देन रेस्ट ऑफ 50 रुपीज है, उसमें आपको सैलरी देना है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एंड द लिटिल बिट द मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके अलावा आपके कोई खर्चे नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हैवी मशीनरीज नहीं है कि मेंटेनेंस। मैं मेंटेनेंस इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप कुछ जो हमारा बेसिक फंक्शंस है कि हम 1 से 5 तारीख के बीच में डेट वाइज ये हम अपनी फ्रेंचाइजीज को गाइड करते हैं, आप एक इलेक्ट्रिशियन हायर करें, वो हर 1 से 5 तारीख के बीच में उनको बेसिक आने दो मेंटेनेंस के लिए। कुछ नहीं होता, हम 500 रुपए उनको पे करेंगे, वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चेक। एक मशीनरी वाले बंदे को बुलाया जिसने जस्ट बेसिक चेक किया क्या है क्या नहीं है। पेस्ट कंट्रोल वाला आया, उसने अपना पेस्ट कंट्रोल किया, 500-1000 रुपए लेता है और पेस्ट कंट्रोल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम अप्रॉक्स 5000 रुपीज में लेके चल रहे हैं कि 5000 रुपए में आपके ये ट्रेवलिंग कॉस्ट और ये सब चीजें ओवरकम हो जाएंगी। ठीक है, वेंडर्स हम आप जो प्रोवाइड करेंगे वो आपको आपके आउटलेट पे आके ही प्रोडक्ट सप्लाई करके जाएंगे, तो आपकी एडिशनल जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। आपको मंथली एक बार आपको बाय रेलवे या बाय बसेस जो आपको वेयर हाउस सेंट्रल गोडाउन से जो आपको कंपनी से जो प्रोडक्ट जाएंगे उनको आपको एक वन टाइम पिक करना है। वो भी लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। अभी हमारी 14 लोकेशंस में से सिर्फ 2 से 3 लोकेशंस ऐसी हैं जिनको पिक करने जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे डिलीवरी अलाउड नहीं है। ओके, बाकी मोस्ट ऑफ दी जगह पे ये है कि वो उनके होम ब्रांच पे ही आके उनको डिलीवर हो जाता है, उनके आउटलेट पे ही डिलीवरी मिल जाती है। तो ये लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है लिटिल बिट, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम इसके पीछे इतनी चीजों को ध्यान दें।
देखिए इसमें आप मैन पावर बता सकते हैं, क्योंकि आपने जो फॉर्मेट की बात की, आपने बोला कि एवरेज 100 ऑर्डर पर डे से शुरुआत हो सकती है। अगर हम 3 फॉर्मेट्स की बात करें, कियोस्क है, शॉप है, क्लाउड में, तो इसमें महीने का एवरेज सेल क्या हमारा निकलना चाहिए? बिकॉज हर एक फॉर्मेट के हिसाब से आपके एपीसीज बढ़ जाएंगे। आई एम श्योर कैफे में बहुत आपका डाइन इन होता है, तो वहाँ पे फूड के साथ अगर आप क्लब करते हैं तो आपका एवरेज टिकट प्राइस कैन इवन गो टू अबाउट 100-150 आपका एपीसीज आते हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल। तो अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें तो हमारा क्या एवरेज एक बिजनेस एक हम समझ सकते हैं कि एक एवरेज आउटलेट करेगा? अगर हम मैन पावर की बात करते हैं, बेसिकली एज पर द गवर्नमेंट रूल, अगर मैं उनकी सैलरी से स्टार्ट करता हूँ, देन कम बैक करूंगा मैन पावर कितने लगते हैं। ओके, हम एक बेसिक आउटलेट पे 1+3 का कॉन्सेप्ट रखते हैं। 1+3, 1 इज द मैनेजर। अगर ओनर खुद वहां पे बैठता है तो हम मैनेजर को साइड कर देंगे, ठीक है। या आपका कोई फैमिली मेंबर बैठता है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जैसे मैं खुद हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड को मुझे आउटलेट ओपन करके देना है, तो ऑब्वियसली बात है वो खुद ही बैठेंगे, क्योंकि उनका बेसिकली 100% प्रॉफिट तो उनका ही हो गया। तो 1+3 के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। 1 इज द मैनेजर एंड 2 इज द शेफ एंड 1 इज द हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड जो है वो टेबल क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग एरियाज हो गया, या वो इस तरीके से काम करता है। तो 1+3 के कॉन्सेप्ट पे कोई भी कैफे, कियोस्क या आप किसी में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपको ओपनिंग करनी है, आप 1+3 के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। आफ्टर दिस, ओके, आपकी अप्रोक्स सेल अगर 10,000-12,000 रुपीज इन अ डे की सेल है आपकी, तो आप 1+3 के कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। आफ्टर दिस, जैसे ही जैसे आपके 5-5 हजार रुपए की सेल दिन की इंक्रीज होती है, आप एक एक एम्प्लॉय अपना बढ़ाते जाए। आपकी कैफे हो, चाहे वो कियोस्क हो, चाहे वो किसी तरीके से किसी भी मॉडल में आप जाते हैं, आपको हर एक जगह पे वो फेमिलियर हो जाए, माने वो इजी वे में पड़ेगा, आपका कन्वीनियंट, आपका आउटपुट, वो सब चीजें आती जाएंगी। जहां 3 से 4 टू 5,000 रुपीज डे की सेल आपकी इंक्रीज होती है जिस मंथ में, आप उस मंथ रिक्रूटमेंट कर लें। रिक्रूटमेंट के लिए सपोर्ट टीम अवेलेबल है, वो आपको इजी वे में कैसे करना है, OLX के थ्रू करना है, FB के थ्रू करना है, वो प्रमोट करेंगे। वैसे हमारा एक चैनल है जिसके थ्रू हम एनजीओज और बहुत सारे एनजीओज के साथ हम कनेक्टेड हो जाते हैं, और एनजीओज विल बी हेल्प आउट की वो हमको स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। जी, मैं क्विकली एक क्वेश्चन लूंगी मैन पावर रिलेटेड। वी आर मिस्टर आशुतोष दुबे जी, जो पूछ रहे हैं कि जो भी आपके 3 फॉर्मेट्स हैं जिनकी हमने बात की है, एक तो उसका ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगता है, ब्रेक इवन आने में, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि टिपिकल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में वापस आती है, और तीसरी चीज जो पूछना चाह रहे हैं विच इज ऑन दी मैन पावर, जिसमें बिकॉज वो, एंड दिस इज अ चैलेंज इन फूड, जहाँ पे आप एक अच्छा जो भी एक मैन पावर होती है उसको सस्टेन करने में, रिटेन करने में काफी कई बार डिफिकल्टीज आती हैं। तो क्या हम ट्रेनिंग देते हैं अपने मैन पावर को, और सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए क्या ऐसी चीजें जो हम करते हैं, और टिपिकल सैलरीज ऑल्सो जो हमारे स्टाफ की रहती हैं, उसके बारे में भी आप बता पाए? सर, सैलरी जो है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल 300 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर हम चार्ज करते हैं, 30 डेज अप्रोक्स इज 9,000 इज द बेसिक सैलरी, जहां से स्टार्ट होगी। 9,000 टू 15,000 तक सैलरी होती है। ओके, एंड आफ्टर दिस, अगर आपको लगता है आपकी सेल्स बहुत अच्छी है, आप सैलरी इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं, देयर इज द वन स्मॉल कॉन्सेप्ट जो हम चलाते हैं अपने फ्रेंचाइजीज में। हम मैंने आपको सजेस्ट करते हैं, एज योर विश, आप करना चाहें या ना करना चाहें। द कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि आपकी जो भी सेल्स हो रही है, जो भी आपकी डाइनिंग सेल्स हो रही है, उस डाइनिंग सेल्स का 5% आप अपने स्टाफ में इक्वली डिवाइड कर दें। इट्स अ इंसेंटिव पोर्शन, जिसमें मैनेजर्स, शेफ जो है वो एज अ टीम वर्क करें। तो 5% जो इंसेंटिव है वो उनको इक्वली डिवाइड करने पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके और भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, आफ्टर दिस मैं वो आपको शेयर करूंगा कि इस तरीके के रूल से करना है। तो ठीक है, तो ये एक आउटलेट में कितना हमारा तकरीबन मैन पावर अगर हम लें, क्लाउड किचन में, फोर कैफे में, तो टोटल मिला के 4 सारा मैन पावर का खर्चा कितना आ जाता है? 4 स्टार्टिंग है, 4 मिनिमम होना चाहिए, 4 से कम। 4 मैन पावर है। अगर हम 10,000 पे 10,000 रुपीज पर स्टाफ भी लेते हैं, देन द 40,000 इज योर एवरी मंथ। हमने हर महीने की आप 40,000 सैलरी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजर। Actually, very quickly, because आपका मेन्यू काफी इंटरेस्टिंग है, and I do see some questions on the menu also. We have विजय गुरु बख्शी, जो मेन्यू के बारे में थोड़ा समझना भी चाह रहे थे, and he wanted to also know कि कस्टमाइज भी करते हैं टेरिटरी के अकॉर्डिंग आप,
So if we can take maybe a moment to showcase जो हमारा मेन्यू ऑफरिंग क्या है हमारी, टिपिकल हाँ जो हमारा प्राइसिंग रहता है मेन्यू का। मेन्यू की प्राइसिंग जो है वो आपकी फ्लक्चुएट होती है एज पर योर रीजन। ओके, लाइक जैसे शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स पे तो बात नहीं करूंगा मैं, बेसिकली आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टली बताऊंगा। सैंडविचेस भी ये आप जब हम सर्वे करते हैं, जब आपकी फ्रेंचाइजी ओपन होती है तो हम सर्वे करते हैं कि आपके एरिया में जिनसे हमने वेंडर, जिनको हम वेंडर बनाने वाले हैं, वो हमको क्या प्राइस वैल्यू पे वो प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले हैं। उसके हिसाब से हमारी एक ऑलरेडी मेन्यू की फॉर्मूला सीट है जिसमें हम आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इनपुट करते हैं और हमको आउटपुट मिलता है कि आपकी 40, जैसे मैंने आपको शेयर किया 40 to 50% जो है वही आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो हम एक साथ रखने के लिए ही पहले जब फ्रेंचाइजी आपसे डील होती है तब आपके वेंडर्स के साथ हम कनेक्टिविटीज करके उसकी बेसिक प्राइस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, हम उसके हिसाब से ही आपके मेन्यू फाइनलाइज कर लेते हैं। ये रीजन टू रीजन फ्लक्चुएट किए जाते हैं। लाइक जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल, सैंडविच का पेज खुला हुआ है, अब हमारे यहाँ पे जो है वो 50 रुपीज में 16 स्लाइसेस ब्रेड सप्लाई होती है, मतलब लगभग 8 सैंडविचेस बनती है। पर स्लाइस की वैल्यू क्या निकली उसके हिसाब से वो प्राइस वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब आपके यहाँ पे वो 100 रुपीज पर पैकेट की ब्रेड है, ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो प्राइस वैल्यू वो अप एंड डाउन होंगी। तो हम जो प्राइस वैल्यू है वो आपकी अप एंड डाउन करने के लिए ओपनिंग के समय ही आपका मेन्यू ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या जा रही है। जैसे कि रॉ फ्रूट्स की हम बात करें, अनार हो गया, मौसम्बी हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, दीज आर द रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स जो आपको अपने लोकल मार्केट से परचेज करना है। तो लोकल मार्केट से परचेज करना है तो इसका जो फ्लक्चुएशन है ये रीजन टू रीजन पता चलता है कि आपके नियर अबाउट में आपको प्रोडक्ट कहाँ से सप्लाई हो रहा है। एक इन अ ईयर वो किस मिनिमम रेंज से किस मैक्सिमम रेंज तक की आपकी वैल्यू जा सकती है। लाइक जैसे कि अनार, इस सीजन में अगर हम देखें, ये गर्मी का जो सीजन चल रहा है, अभी अनार की कीमतें जो है वो लगभग 150 रुपए किलो के आसपास जा रही है। मिनिमम जा रही है आपकी 65 रुपीज, मैक्सिमम जा रही है 150 रुपीज। तो उसके हिसाब से हम मेन्यू रेट स्विच करते हैं। ओके, तो आपके रीजन, आपका लोकेशन पे जब हम सर्वे करते हैं आफ्टर द फ्रेंचाइजी, जब हमको मेन्यू डिसाइड करना होता है, हम आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। वी विल शेयर द प्राइसिंग, वी विल शेयर द फॉर्मूलाज, वी आर शेयरिंग द हाउ टू फाइंड आउट द मेन्यू रेट्स। हम वो आप चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ भी चीजें होती हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस रेट्स को कंटिन्यू करते हैं। और आपके आसपास कस्टमाइजेशन करते हैं हम मेन्यू की, कोई ना कोई अगर लोकल टेस्ट के हिसाब से कुछ ऐड करते हैं मेन्यू में, या हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू है? आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन विजय जी वांटेड टू आस्क। मेन्यू तो स्टैंडर्ड है, नो डाउट, बट अगर कोई फ्रेंचाइजी कोई चीजें शेयर करती है वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ फॉरवर्ड की जाती है। मैं 100% एश्योरिटी नहीं देता हूं कि वो हमको रखना है या नहीं रखना है, ओके, बट हमारी सपोर्ट टीम, सर्विस टीम इस पे, सॉरी रिसर्च टीम जो है वो इस पे रिसर्च करती है और उसके बाद ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। हो सकता है वो लॉन्चिंग टाइम पीरियड 2 मंथ का भी हो सकता है 3 महीने बाद हम लॉन्च करें, लेकिन हम अश्योरिटी नहीं देंगे कि हम करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके रीजन के हिसाब से। अब हम चले जाएं पंजाब, अगर पंजाब में मैंने लस्सी नहीं चलाया तो नो डाउट मेरा रहने का कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा मैं आउटलेट खोलूं जहां पे ड्रिंक्स मिले और ड्रिंक्स में लस्सी ना मिले तो कोई मतलब नहीं। तो ऑब्वियसली बात है हम लस्सी वहां पे प्रमोट करेंगे। Right. So I understand, there cannot be a drastic change in the offering because every brand has ethos, उनका एक अपना offering होती है which cannot be drastically changed। हाँ, but ऐसी कोई चीज जो local offering और brand का जो भी offering है उसके साथ कहीं ना कहीं complement करती है, they would be open to consider। कितने लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी, एक तो आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट मार्केट्स है जहाँ पे आप इमीडिएट एंट्री चाहते हैं, और दूसरा आपने जो मास्टर फ्रेंचाइजी की बात की है वो हम छत्तीसगढ़ के बाहर ही देख रहे हैं, या उसके आपके जो होम टाउन है या होम सिटी में अगर बोलूं उसके भी आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम एरिया फ्रेंचाइजी या मास्टर फ्रेंचाइजी कंसिडर कर सकते हैं? फ्रेंचाइजी जो है वो मैं छत्तीसगढ़ के बाहर। ओके, एंड कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहाँ पे हम यूनिट और एरिया फ्रेंचाइजी इमीडिएट पोटेंशियल देखते हैं? मेट्रो सिटीज है उन पे हम इजीली मास्टर फ्रेंचाइजी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा बूम होता है मार्केट का। और हम जैसे अगर हम जो हमारा एक रूल है 2 to 3 किलोमीटर के बीच में एक फ्रेंचाइजी देने का, ये दोनों प्लेसेस ना हो, ठीक है।
एक रेडियस हम लेके चलते हैं, 2 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए दूसरी फ्रेंचाइजी ओपन होने के लिए, उसको ही कंसीडर करते हुए हम मेट्रो सिटीज में जाना चाहेंगे। एंड छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी ऐसे स्पॉट्स होंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ऑल द मेन लोकेशंस विद इन दैट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो कौन सी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आपको लगता है अभी भी एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हो जहाँ पे आप जाना चाहेंगे? जगदलपुर है, रायपुर है, कोरबा, ये कुछ सिटीज हैं जो अभी भी जाने लायक हैं और इन पे हमारी ऑलरेडी कमांड चल रही है। वी आर ऑलरेडी डील विद सम फ्रेंचाइजीज ओनर। हेल्पफुल जितेशी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, कोई भी ऐसी यूएसपी जो अपने ब्रांड के बारे में आप बताना चाहते हैं, वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। सर यूएसपी बहुत सिंपल सी है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको जूस के देखने मिल रहे हैं और आर हेल्दी, फ्रेश एंड वी आर गिविंग अप जूसेस इन विद इन 15 मिनट्स, 15 टू 20 मिनट्स में हम जूस सर्व करते हैं कस्टमर्स को। तो जो उसकी फ्रेशनेस है, जो उसकी ताजगी है, वो बहुत कॉमनली बनी होती है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको आपने कोल्ड प्रेस जूस अगर हम बात करें, हमने एक जूस डाला, उसके ऊपर दूसरा जूस डाला, ऑब्वियसली बात है उन दोनों के कंटेंट मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद जो हमारी बॉडी को आउटपुट मिलना चाहिए, जो एनर्जी लेवल मिलना चाहिए, जो हमको उनके प्रोटीन जो कंटेंट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते। तो प्रेस जूस का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चल रहा है, बट प्रेस जूस इज नॉट अ 100% हेल्दी फॉर अस। अगर हम बात करें ब्रोकली, मेरी ख्याल से शायद ब्रोकली का जूस कहीं नहीं मिलता। मैंने जितना मेरा सर्वे बोलता है इन इंडिया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ब्रोकली का जूस कोई सर्व नहीं करता है। वी आर सर्विंग अ जूस ऑफ ब्रोकली। आप एक बार टेस्ट करके देखें, बहुत ऑसम टेस्ट है। मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में मैंने बहुत जूस पिया है, मैं काफी मीटिंग्स में जाते रहता हूँ, तो दिल्ली मैंने काफी अच्छे से देखा हुआ है। दिल्ली में मैं कोई भी जूस पीता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वहाँ पे शक्कर मिलाने का बहुत अच्छा ट्रेंड है। दे आर कि भाई अच्छा नहीं मिल रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ा शुगर ऐड किया और ग्राइंड करके दे दिया, या उन्होंने चुपके से शुगर मिला दिया। तो स्पेशली हम वेजिटेबल जूसेस की बात करें, वेजिटेबल जूसेस में अगर शुगर मिला देते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है ओके प्रोडक्ट की, वो खत्म होने लगती है। जो उसकी नेचुरलिटी है वो विद इन 10 टू 15 डेज, अगर आप कभी लेबोरेटरी में टेस्ट भी करवा लें प्रोडक्ट को, 10 टू 15 मिनट्स में वो अपनी कंसिस्टेंसी को खराब करने लगता है। लाइक जैसे पालक हो गया, कैरेट हो गया, इनके साथ आप शुगर मिला के देखें, विद इन 15 मिनट्स वो काला पड़ जाएगा, उनकी टेस्ट भी चेंज हो जाएगी। वहीं पे हम लेमन मिलाते हैं, लेमन का कंटेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है और उसकी जो कंडेंसिटी है वो साइट्रिक एसिड के साथ मिलने के बाद वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे रिसर्चेस हैं सर, जो हमारी जूस फैक्ट्री को कंटिन्यूअसली करते रहती है। हमारा काम ही है रिसर्च करके हेल्दी ही देना है। हम डायरेक्टली थैंक यू सो मच। जुड़ते हैं, जिम जैसे जिम हो गया, जितनी तेजी से जिम खोल रहे हैं उतनी तेजी से जिम बंद भी हो रहे हैं, पर उनको सर्व करने के लिए द वन इज द ओनली ब्रांड जूस फैक्ट्री, जो आपको इजीली हर चीजें प्रोवाइड करेगी। ग्रेट, very elaborate presentation, Jiteshi and Mansi ji. I think we have tried and covered a lot which our investors are also seeking, and many of them have also requested for a presentation and also the financial working, which friends will do it post the webinar. All of you will receive a thank you email from us, and we'll also set up a date in this coming week जहाँ पे हम टीम के साथ आपकी कॉल या एक मीटिंग कराना चाहेंगे। तेशी, कोई ऐसा दिन अगले हफ्ते का जो आपको लगता है आप पोटेंशियल जितने भी हमारे पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स आ जाए उनसे अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे, तो कोई एक दिन हम अगले हफ्ते का हम फिक्स अगर कर सकते हैं? मे बी आई थिंक ऑलरेडी फिक्स्ड अप अ डेट एंड आई विल रिक्वेस्ट अर्चना, if that date is available, we can announce the date. Ma'am, the IFM Day discovery date is 6th of April, where everybody can join and book their slot with us. Sure. So friends, it is 6th of April where we would like to do one-on-one meeting. Jiteshi, if this date is okay, we can start inviting all the investors. And friends, I will request जो भी आपके questions हैं business को लेके, आप please be ready with those questions and we'll take it up with Jiteshi. अगर आप area में interested हैं या unit franchisee में, even multi-unit franchisee can also be very interesting options, especially if you want to do a combination of kiosk and cafe, or even maybe a takeaway cloud kitchen.
सो ये सारे फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं. 6th April is what we will like to do a discovery day, जहाँ पे आप ब्रांड को और थोड़ा डिटेल डिस्कवरी आप कर सकते हैं. जो भी आपके क्वेश्चंस फॉर today's webinar which have not been answered, we can take it up one to one. Hitesh ji, before we leave, कोई भी एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं एज अ maybe a message or a note to everyone. देखिए, प्रॉफिट के बारे में तो मैंने बता दिया. द सेकंड पॉइंट इज द ट्रेनिंग. मुझे ऐसा लगता है शायद एक फूड इंडस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट होता है कि शेफ चला गया, भाग गया, वो सीख के वापस नहीं आ रहा है, एंड मुझे नया रिक्रूटमेंट किया, वो सीखेगा कैसे इतने कम टाइम पे, प्रॉपर रेसिपीज कैसे देगा. तो एक क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ आशुतोष दुबे जी का, कि चैलेंज फॉर सस्टेन द गुड कुक, है ना. तो सर उसी के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाइड किया था कि ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारी बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं, बहुत सरप्राइजिंगली होती हैं. हो सकता है महीने में 2 बार भी पहुंच जाए. हमारी ऑडिटिंग, हमारी सपोर्ट टीम कंटिन्यूअसली काम करती है आपके लिए. अगर आपका सेल गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है हम आपको नहीं बताएंगे, बट कंटिन्यूअसली वी आर मॉनिटरिंग. हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहेगी. एंड द सेकेंड पॉइंट, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड रेसिपीज हैं, जो गाइड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 7 दिन में कोई भी नया बंदा चीजों को सीख सकता है. बट मैं पॉइंट बहुत क्लियर बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि वो स्पीड अप कितना होगा, बट वो गलतियां नहीं करेगा. अगर उसको मौसम्बी जूस जैसे बनाना है वो वैसा बना सकता है. बट जिस चीज को बनाने के लिए पुराने बंदे ने इतने दिन से मेहनत की, जो आपका शेफ चला गया है, वो 10 मिनट्स में बनाता होगा, तो हो सकता है ये बंदा 15 मिनट्स में बनाए, पर गलत नहीं होगा. ओके, दीज आर अवर गाइडलाइंस कि हम उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि मिस्टेक्स नहीं होगी. ओके, बट एज पर द टाइम वो धीरे धीरे वो बंदा जो है वो 15 दिन में इतना ट्रेंड हो चुका रहेगा, 20 दिन में, कि वो आपकी चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली काम करेगा. मैंने 7 दिन बहुत होते हैं नए बंदे को ट्रेंड करने के लिए. तो आप ये मत सोचिए कि आपको नया फ्रेशर्स मिल रहा है तो हम उसको जॉब पे रखेंगे. Thank you so much, Hitesh ji. I think you patiently answered all the questions raised. और एक रिक्वेस्ट मेरा सब लोगों से है जो इस वेबिनार पे आए हैं या सुन रहे हैं फेसबुक लाइव पे. They have one of the most experiential, I would say, outlet in what you've also seen on the video. Anybody who's keen, I would request and maybe advise that आप existing जो stores हैं उनके पास जाके kindly experience the outlet, experience कीजिए food कैसा है, तभी आप डिसीजन लीजिए. बट इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू डू दैट, स्पेंड सम टाइम, मे बी यू कैन ब्लॉक हाफ डे विद जितेश जी एंड हिज टीम who can even take a tour of the entire outlet. I'm sure you will have a better understanding of the business model. And बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस है जो आप पूछ रहे हैं. You can even see the working of the staff people. So reach out on the hotline number also, which we have put in the chat box, which is 9717683838. आपकी जो भी क्वेरीज हैं बिजनेस को लेके, अपॉइंटमेंट अगर आप 6th की आप ब्लॉक करना चाहते हैं, we'll block your half an hour slot with जितेश जी. अगर आप में से कोई भी पास रहते हैं और विजिट करना चाहते हैं लोकेशन, उसके बारे में भी आप हमें रीच आउट कीजिए और हमें जानकारी दीजिए. We'll fix up a slot with the team and come back to you. We also have our teams in East India and Central India who's working very closely with the company. And अगर आप उस सिटी से, हमारी local teams भी आपको reach out करेंगी वेबिनार के बाद, और we'll try and set up your appointments both maybe physically or virtually as maybe appropriate and feasible. So thank you so much, Hitesh ji. Thank you so much, Mansi ji, for coming in. And thank you so much for giving us the platform. Thank you, friends. Thank you so much once again. And Ashna, if I can request to take over. And friends, we put a hotline number. Please, आप take a note of that. And also, हमारा Facebook page है Franchise India Brands का. मैं request करूँगी all of you should go and subscribe on the Facebook page of Franchise India. तो जितने भी हमारे businesses हैं जो हम नए launch करते हैं, उनके webinars आते हैं या otherwise, उन सबकी जानकारी आपको real time मिल सकती है. Thank you. Over to you, Ashna. Some problem, Ashna, with your Ashna, can you hear me? I think there's a problem with Ashna's audio. Ashna, are you able to hear me? No, I think she's logged off. So friends, I'd like to thank you for being with us today. I think Ashna is logged in back. We'll just take a moment to yeah. I'm so sorry, ma'am, I lost my connection. So thank you so much,
Gitesh, thank you so much, Shubham. Thanks, Mansi, for joining in today. Thank you so much, Sonia ma'am, for the detailed interaction with all our investors. Dear friends and family who have joined us today, we really want to thank you. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We request each one of you to save the number in your phone book so that you get a regular updates from our side. You can also connect with us at different social handles, information on the screen. You can also see all the previously done webinar. They are available in the video library of Franchise India Brands Limited Facebook page. That's the page we follow. So please do register, subscribe us. You can also join and connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. And tomorrow, we invite you to join the journey of Glue Design. That's the brand we are bringing for you. It's an innovative brand. It's India's leading commercial space designers and transformers, where the team will come and talk about how they have created space in this particular vertical. So please do registration today itself at the same business hotline number so that you get a confirmation mail. We look forward to have you tomorrow sharp 12 p.m. for the great brand. Thank you so much once again for joining in. Have a great day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you, friends. Good day. Bye.